Alright, so Bacha, now let's actually get started with another concentration term, which is normality, right? So let me just quickly adjust the color of the pen. तो देखो बच्चों, अगर हम normality की अगर हम बात करें तो this is one concentration term that we've kept on hold, right? Because solutions chapter में, you know, we've discussed all the concentration terms. We've discussed molarity, molality, mole fraction, then percentage, like percentage based concentration terms like weight by weight, you know, volume by volume, weight by volume, which is percentage by strength, and all of these concentration terms. But one concentration term that we specifically kept on hold was normality. और तब, you know, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने normality नहीं कराया, but I told you that it's going to make so much more sense when we do redox reaction. हर टीचर का पढ़ाने का flow अलग होता है, and because my tutors have actually taught normality with redox reaction, and trust me, once you are thorough with the entire syllabus, you will understand why, you know, teaching normality with redox reactions makes so much more sense, right? So tighten your seatbelts now. Now the chapter is going to take an interesting turn. Up until now, you know, we were just discussing the oxidation state, and that was so much easy. ठीक है, इसलिए redox reaction बच्चों को starting में तो बहुत interesting लगता है, because initially in the first few lectures, all we are doing is, you know, taking out oxidation states, you know, average oxidation number, etc., etc. वही सब कुछ चल रहा होता है. But you know, once you know you start with normality, now the chapter takes a different turn altogether. ठीक है, इसके बाद अब जब आएगा, you know, law of equivalence, you know, and then titration. This is where, you know, it gets difficult. I wouldn't say it gets difficult, but it gets, you know, tricky, because this is something that you've never heard before, never learned before. So I'd want all of you to pay attention to this, okay? So come on, so let's start this. Let me just quickly, you know, select the colors, and we'll quickly get started. And there you go. One second, should I? One second, write with the golden pen. That would make so much more sense. Okay. Alright, तो अब बच्चों अगर बात करूँ नॉर्मेलिटी की, तो जैसे हमने मोलारिटी पढ़ा था. मोलारिटी क्या था? मोलारिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट? हाउ वुड वी डिफाइन मोलारिटी? मोलारिटी को बच्चों हम डिफाइन करते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है, राइट? मोलारिटी को हम डिफाइन करते थे कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लाइक दिस इज हाउ वी वुड डिफाइन मोलारिटी. अब बच्चों यू नो, अब हम कुछ सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे हैं, विच इज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी बच्चों क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. क्या होता है नॉर्मेलिटी में? तो नॉर्मेलिटी में आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह, नॉर्मेलिटी में इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स यू आर टेकिंग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस. आप क्या ले रहे होते हो नॉर्मेलिटी में? आप ले रहे होते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट. अब ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है? वी विल यू नो डिस्कस एंड डाइसेक्ट एवरी वर्ड वन बाय वन. अभी बस सुनते जाओ, फॉलो द स्टोरी लाइन. नॉर्मेलिटी क्या होता है बच्चे? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस. इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है. ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, इतना सबको समझ आ गया? अब देखो, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय नंबर ऑफ यू नो इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट. अब देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस से मेरा एक्चुअली में क्या मतलब है. बट बिफोर वी एक्चुअली गेट देयर, एक चीज़ जो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज एंड देयर यू गो. एक मिनट, इसका साइज यहाँ पे, एंड लेट मी डिलीट दिस पार्ट, दिस पर्टिकुलर पोर्शन. वी कैन कम्प्लीटली लेट गो ऑफ दिस and let me just put it here because I have a few more pointers to discuss, right? अब ये तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि एग्जैक्टली मोलारिटी होती क्या है, राइट? वो डिस्क्राइब्ड इट. अब मैं एक सवाल अगर आपसे पूछो, जैसे कि आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है आपको किस में लेना है? लीटर्स में लेना है. लेकिन मान लो अगर वॉल्यूम आपको लीटर्स की जगह ml में दे रखा हो, जो कि मोस्टली क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम ऊपर तो एज इट इज ही रहने देंगे, ऊपर तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ही रहेगा, राइट? नीचे क्या हो जाएगा? अगर ठीक है, ऊपर तो रहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, बट अब इस बार वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चे किस में? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इस बार जो है वो आप किस में ले रहे हो? ml में. तो जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में लोगे तो ml में कैसा आया? देखो, 1 लीटर में हम सबको पता है 1000 मिलीलीटर होते हैं. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, राइट? तो बेसिकली आपको नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, लीटर को मिलीलीटर में बदलना है. जैसे अगर मान लो 5 लीटर है, ठीक है, तो 5 लीटर में मैं 5 में किसका मल्टीप्लाई करूँगी? 1000 का मल्टीप्लाई करूँगी, तभी तो 5000 ml आएगा. ऐसे ही मान लो मेरे पास V लीटर है, ठीक है, मतलब V वॉल्यूम है लीटर में, तो मेरे को इस V वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैंने किया 1000 से मल्टीप्लाई. अब देखो, हमारा राज तो चल नहीं रहा है कि हमने डिनोमिनेटर में जिससे चाहा मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो हमने डिनोमिनेटर में किया वही हमें न्यूमरेटर में करना होगा. 1000 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना होगा. अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो लीटर्स में, जब आप उसे इंटू 1000 करोगे, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स. ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इंटू 1000 divided by volume of solution in ml. I hope you actually got the gist of it, and this was specifically for people, you know, who are not thorough with the chapter solutions, so that to ensure कि this still makes sense to all of you. अब देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है नीचे हमारे पास क्या है?
नीचे अगर आप देखें तो नीचे हमारे पास बेसिकली है वी हैव वॉल्यूम, राइट। अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में वी हैव वॉल्यूम, राइट। और जैसे कि हम सबको पता है जो वॉल्यूम होती है किसी भी चीज़ की, दैट चेंजेस विद टेम्परेचर, राइट। आवर वॉल्यूम चेंजेस, मास रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आपका गर्मियों में 50 kg मास है, ठीक है, तो आपका सर्दियों में मास चेंज हो जाएगा। द मास डज नॉट चेंज, राइट, इट्स द वेट दैट चेंजेस, ठीक है। तो मास कांस्टेंट रहता है बट वॉल्यूम चेंजेस ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। तो बिकॉज नॉर्मैलिटी को भी आप वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं नॉर्मैलिटी को बोल सकती हूँ कि नॉर्मैलिटी भी जस्ट लाइक मोलैरिटी एंड अ लॉट ऑफ अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। मोलैरिटी भी एक्चुअली में टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, राइट। नॉर्मैलिटी इज ऑल्सो अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। नॉर्मैलिटी जो है बच्चा वो भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, समझ आ रहा है। नॉर्मैलिटी जो है वो बच्चा वो भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। आई होप दिस इज मेकिंग परफेक्ट सेंस टू एवरीवन, ठीक है। अब मैं अगर बच्चा बात करूँ इसकी यूनिट्स की, राइट, तो आई होप वी आर डन विद दिस। इतना सबको समझ आया, बट एक काम करते हैं मैं यहीं लिख देती हूँ यूनिट्स। वाई डू वी हैव टू स्विच टू अनदर पेज, यहीं लिख देते हैं यूनिट्स की। बच्चे अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे मोल्स की यूनिट क्या होती थी, मतलब मोलारिटी में यूनिट क्या होती थी, मोलारिटी में होती थी मोल पर लीटर, राइट, जिसको आप क्या बोलते थे, मोलारिटी होती थी मोल पर लीटर, जिसको आप मोलर भी बोलते थे, राइट। अब ऐसे नॉर्मैलिटी की यूनिट क्या होगी, ऊपर ग्राम इक्विवेलेंस है, राइट। तो ऊपर अगर हम बात करें नॉर्मैलिटी की यूनिट क्या होगी, नॉर्मैलिटी की ऐसा यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। वहाँ पे मोल पर लीटर था या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको हम 1 नॉर्मल भी बोलते हैं, लाइक नॉर्मल, वहाँ की मोलर थी, इसकी नॉर्मल होगी। नॉर्मैलिटी की कौन सी ऐसा यूनिट या फिर यूनिट क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इससे मेरा क्या मतलब है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, देयर यू गो। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो आई थिंक इट शुड मेक परफेक्ट सेंस टू एवरीबॉडी। 1 सेकेंड, ओके। तो देखो, अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसको डिस्क्राइब करना हो तो 1 मिनट दो मुझे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लेट्स से अगर मैंने लिखा है 2 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन है मेरे पास। मैंने क्या बोला बच्चा, मेरे पास 2 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, मेरे पास 2 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन है। तो इन दैट केस 2 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन का मतलब क्या है, मेरे पास 2 ग्राम इक्विवेलेंस, आई हैव 2 ग्राम इक्विवेलेंस, आई हैव 2 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। मेरे पास 2 ग्राम इक्विवेलेंस है H2SO4 की। ग्राम इक्विवेलेंस क्या है, विल कम बैक टू इट, जो होल्ड हॉर्सेस, ठीक है। 2 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन का मतलब मेरे पास 2 ग्राम इक्विवेलेंस है H2SO4 के। तो नॉर्मैलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो 2 नॉर्मल मतलब जैसे 2 मोलर मतलब क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसी 2 नॉर्मल मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 विच इज द सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इतना सब बच्चों को समझ आया, ठीक है। नॉर्मैलिटी मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आई होप दिस मेड परफेक्ट सेंस। अब आता है द क्वेश्चन दैट you've all been waiting for, the answer that all of you have been waiting for, ठीक है। और वो सवाल क्या है, वो सवाल है कि मैम आप बार बार बोल रहे हो ग्राम इक्विवेलेंट, what exactly is this gram equivalent? We wonder what exactly is this gram equivalent, right? So now let's answer the question, what exactly is gram equivalent? Let's do it together, ठीक है। अब बच्चों हम एक्चुअली में डिफाइन करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, राइट। तो पेन्स अप एवरीबॉडी, जस्ट अ मोमेंट एंड देयर यू गो, ऑलराइट। तो अब बच्चों डिस्क्राइब करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेट्स से मैं इसको समझाती हूँ, लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल। ओके, लेट्स से ऑक्सीजन ले लेते हैं, राइट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से ऑक्सीजन। लेट्स से ऑक्सीजन बच्चों जो है हमें पता है विद एटॉमिक नंबर 8, राइट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है बच्चों, इफ आई मे आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? लेट्स सी, ये तो सबको पता ही होगा, इट्स 16, राइट, 16 ग्राम्स, ठीक है। या एटॉमिक मास होता है 16 AMU, द मोलर मास होता है 16 ग्राम। मोलर मास को हम ग्राम्स में डिफाइन करते हैं, राइट। ग्राम एटॉमिक मास, यू हैव एवरेज एटॉमिक मास एंड देन यू हैव ग्राम एटॉमिक मास, राइट, एंड देन यू हैव रिलेटिव एटॉमिक मास। की पढ़ते हैं ना मूल कॉन्सेप्ट में, याद है। तो ये 16 ग्राम्स होता है। तो मान लो अगर मैंने ऑक्सीजन का, लेट्स से इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, लेट्स से मैंने एक पैकेट लिया, ठीक है। मैंने एक 16 ग्राम का पैकेट लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मैंने एक पैकेट लिया, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन का पैकेट लिया, राइट। तो इसको समझो ये पैकेट है जो मैंने येलो से इंसर्कल किया, ये मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन का पैकेट लिया। तो क्या मैं इसे ऐसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि ये मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है। 16 ग्राम ऑक्सीजन का पैकेट मतलब 1 मोल ऑक्सीजन में, इसको ऐसे भी तो डिफाइन कर सकती हूँ ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन है। तो मैं बोल सकती हूँ जो 16 ग्राम का ऑक्सीजन का पैकेट है, या फिर मैं इसे बोल सकती हूँ कि 1 मोल ऑक्सीजन का पैकेट ले लिया मैंने, ठीक है। पैकेट एक इमेजिनरी क्वांटिटी समझ लो, ठीक है। अब यहीं पे मान लो मैं 16 ग्राम की जगह लेट्स से एक और पैकेट बनाती हूँ, बट इस बार 16 ग्राम की जगह मैं 32 विच इज़ 32, 32, राइट, 32 ग्राम्स का पैकेट ले लूँ अगर ऑक्सीजन का।
तो इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे बोल सकती हूँ, इसको मैं दूसरी तरीके से बोल सकती हूँ कि मैंने 2 मोल ऑक्सीजन का पैकेट लिया, राइट। 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, पर मैं अगर उसको डबल कर दूँ, 16 का डबल इज व्हाट, 16 2s आर 32, राइट। सो 32 मतलब अगर मैं बोला 32 ग्राम का ऑक्सीजन का पैकेट है, मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ कि मेरे पास 2 मोल ऑक्सीजन का पैकेट है, राइट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना हो तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हाउ वी गोना डू इट। अभी मैंने 2 मोल कैसे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे गिवन मास दे रखा था मुझे 32, ठीक है। और मोलर मास क्या होता है, विच इज 16, राइट। तो 16 1 था, 16 2 था। नंबर ऑफ मोल्स बच्चे ऐसे ही तो निकालते हैं। आई होप दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग टू ऑल ऑफ यू। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो, आई एम श्योर इतना तो सबको पता ही है ना बच्चा, ठीक है। आई होप दिस इज नॉट व्हाट यू आर फाइंडिंग कंफ्यूजिंग एट ऑल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो गिवन मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो आपने वही किया, ये जो आपको 32 ग्राम का पैकेट दे रखा था ऑक्सीजन का, 32 ग्राम वाज द गिवन मास, इसको आपने डिवाइड कर दिया मोलर मास से जो कि था 16, एंड दैट्स हाउ यू गॉट इट। 16 1 था, 16 2 था, एंड दैट्स हाउ यू गॉट 2 मोल एज योर आंसर। अब इस सेम एनालॉजी को दिमाग में याद रखते हो, यू विल हैव टू आंसर द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब सेम एनालॉजी को दिमाग में ध्यान रखना, राइट। ओके, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड देयर यू गो, 1 सेकंड। I think this color was looking pretty fine, ठीक है। It was going with the slides, ठीक है। तो उसी सेम तरीके से लेट अस सपोज वहाँ तो मैंने मान लो ऑक्सीजन लिया था, ठीक है, ऑक्सीजन लिया था। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले रही हूँ, लेट अस सपोज लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट एक्स, ठीक है। मैं एक एलिमेंट एक्स ले रही हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने एलिमेंट एक्स ले लिया, ठीक है। अब मैं लेट अस सपोज मैं कह रही हूँ, अभी आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली चीज़ होती क्या है, बट लेट मी डिफाइन इट, ठीक है। तो बच्चा अब लेट्स इमेजिन कि ना हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है। एक एलिमेंट हमने अज्यूम कर लिया, और लेट अस सपोज उसका जो इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास लेट्स से उसका लेट्स से कुछ भी ले लो यार, लेट्स से 10 ग्राम्स है, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट मास लेट्स से 10 ग्राम्स है। अब आप बोलोगे मैम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इट्स लाइक अभी देखो समझने के लिए ना आपको थोड़ा तसल्ली रखना पड़ेगा, बोलिए मैम अभी क्या बोल रहा है, बोलते नॉर्मैलिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपके नॉर्मैलिटी को समझने के लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट समझना पड़ेगा। फिर आपने बोला कि ठीक है अब मैं ग्राम इक्विवेलेंट तक जाती हूँ। अब ग्राम इक्विवेलेंट समझने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब मैं ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट मास जैसे समझ में आएगा वैसे आपको ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ जाएगा, जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ गया वैसे आपको नॉर्मैलिटी समझ में आ जाएगा। तो यू स्टडी इट इन अ रिवर्स मैनर, राइट। यहाँ पे आपको रेट्रो ऑर्डर में चलना पड़ेगा, लेकिन रिवर्स मैनर, राइट। तो ठीक है, लेट्स सपोज एक एलिमेंट एक्स है, वहाँ पे जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ले लो, मान लो अज्यूम करो लेट्स से उसका इक्विवेलेंट मास लेट्स से 10 ग्राम है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जैसे हम वहाँ पे मोलर मास पढ़ा, मैंने ऑक्सीजन के टर्म्स में आपको मोलर मास के टर्म्स में समझा था। तो लेट्स से ये जो एलिमेंट एक्स है इसका इक्विवेलेंट मास लेट्स से कितना है, 10 ग्राम्स है। तो लेट्स से इस एलिमेंट का मैं अगर एक पैकेट बनाती हूँ, इस एलिमेंट का मैंने अगर एक पैकेट बनाया लेट्स से 10 ग्राम्स का, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरे पास जो एलिमेंट एक्स है इसका मैंने 10 ग्राम का अगर एक पैकेट बनाया, तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ जैसे वहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन था, ठीक है, इसका मोलर मास 16 ग्राम्स होता है। तो अगर मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन का एक पैकेट बनाया तो मैं से 1 मोल ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ बात करें एलिमेंट एक्स की जिसका इक्विवेलेंट मास 10 ग्राम्स है, तो जैसे मैंने 10 ग्राम का एलिमेंट एक्स का पैकेट बनाया, तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है एक्स एलिमेंट का, दिस इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर 1 इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बजाय 1 इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं खाली। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो 10 ग्राम का पैकेट है एलिमेंट एक्स का, ये जो 10 ग्राम का पैकेट है एलिमेंट एक्स का, दिस इज 1 इक्विवेलेंट एलिमेंट एक्स। व्हाट इज दिस इज 1 इक्विवेलेंट एलिमेंट एक्स, ये एक इक्विवेलेंट एलिमेंट एक्स का। ऐसे ही मान लो मैंने एक और पैकेट बनाया, लड़े से मैंने एक और पैकेट बनाया 30 ग्राम का, ठीक है, लड़े से मैंने 30 ग्राम का एक और पैकेट बनाया, ठीक है। तो इसको मैं और कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, इसी एलिमेंट एक्स का लेट्स से मैंने 10 ग्राम की जगह 30 ग्राम का पैकेट बनाया, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, अगर 10 ग्राम मतलब एक इक्विवेलेंट था, मतलब 10 ग्राम एक इक्विवेलेंट था, तो मैं 30 ग्राम क्या हो जाएगा, 30 ग्राम विल बी 3 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये जो 30 ग्राम पैकेट है इस एलिमेंट का एक्स का, इसको मैं बोल सकती हूँ दिस इज 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मैंने कैसे निकाला, इसको मैंने निकाला, ये जो मेरे को ये जो मास दे रखा था दिस इज गिवन मास विच वाज 30 डिवाइडेड बाय जो इसका इक्विवेलेंट मास था जो हमने 10 अज्यूम किया था, राइट। तो 10 1 था 10, 10 3 तो 30, ठीक है, तभी तो आ गया मेरे पास 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो, विच इज बेसिकली व्हाट जो भी आपको मास दे रखा होगा डिवाइडेड बाय गिवन मास, ठीक है। तो अब एक्चुअली में समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है। तो नाउ हाउ डू यू डिफाइन इट, ठीक है, तो लेट्स डिफाइन इट फॉर द वर्ल्ड नाउ, ठीक है, लेट्स डिफाइन इट टुगेदर, जस्ट अ मोमेंट एवरीवन। ओके, लेट मी पुट ऑन द हेडिंग्स, ठीक है। तो अब हमें एक्चुअली में अगर पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो अब अगर मान लो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालने हैं, राइट, जैसे हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालने हैं, अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकाल सकते हैं,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस आप बच्चे कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप यूज़ करोगे जो भी आपको मास दे रखा है, विच इज़ बेसिकली द गिवन मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो भी आपको मास दे रखा है, विच इज़ बेसिकली द गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होता है जो भी आपको मास दे रखा है, विच इज़ गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, दैट्स द ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ बच्चे एग्जैक्टली यू नो और क्या होता है, ठीक है, तो अब यहाँ से आपको ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ गया। इट्स वेरी सिमिलर टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे आप? अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते थे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इन द सेम वे अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे भी आप गिवन मास ले रहे हो, बस इस बार आप वहाँ पे मोलर मास ले, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे तो आप मोलर मास लेते थे, और यहाँ पे मोलर मास की जगह आप इक्विवेलेंट मास ले रहे हो। आई होप दिस इज मेकिंग परफेक्ट सेंस टू एवरीवन, इज इट? ठीक है, तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट। अब एक्चुअली में डिफाइन करते हैं, लेट्स डिफाइन इक्विवेलेंट मास फॉर द वर्ल्ड, राइट? ठीक है, तो अगर मैं अब आपको इक्विवेलेंट मास डिफाइन करूँ तो व्हाट एग्जैक्टली इज इक्विवेलेंट मास बच्चे? इक्विवेलेंट मास बेसिकली क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इट इज़ द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वो मास। ठीक है, अब नहीं यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ गया, ठीक है, फिर हम ड्रॉ करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? पैकेट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग मास विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इज नोन एज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट? तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चा? किसी भी सब्सटेंस का वो मास, राइट? किसी भी सब्सटेंस का वो मास विच इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास, राइट? तो किसी भी सब्सटेंस का वो पैकेट जो एक इक्विवेलेंट के बराबर। वंस अगेन वाला पार्ट को दोबारा, ठीक है, वंस अगेन बच्चे एक मिनट, ठीक है। तो बच्चे अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट डिफाइन करना हो फॉर द वर्ल्ड, तो लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर। पैकेट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मतलब वो मास, मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो पैकेट जिसमें यू नो मास हो विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, राइट? तो उसे मैं क्या बोलूँगी? 1 इक्विवेलेंट। वंस अगेन दिया, इसको नहीं समझा पा रही सही से, एक मिनट रुक जाओ, एडिट करके यहाँ से दोबारा करते हैं, ठीक है। तो अब बच्चा अगर हमें डिफाइन करना हो, यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज ग्राम इक्विवेलेंट, सो लेट्स डू इट टुगेदर। पैकेट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इज नोन एज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वो तो मतलब किसी भी एलिमेंट का एक पैकेट अज्यूम करो, उसमें उतना मास होना चाहिए जितना सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास है, उसको मैं बोलूँगी उस सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक पैकेट लिया था, मैंने बताया था ना, वही वाला एग्जांपल, अज्यूम करो इक्विवेलेंट मास 10 ग्राम है, तो मैंने अगर 10 ग्राम का एक पैकेट ले लिया सब्सटेंस का, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ये 10 ग्राम का पैकेट है सब्सटेंस का, या फिर ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है सब्सटेंस का। यहीं पर 10 ग्राम की जगह अगर मैंने 30 ग्राम ले लिया तो मैं क्या बोल सकती हूँ? ये 3 ग्राम का। अगर 10 ग्राम इज इक्वल टू यू नो, अगर मैं अज्यूम करूँ कि 10 ग्राम की सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास है, तो अगर मैं 10 की जगह 30 ग्राम का पैकेट ले रही हूँ, दैट विल बी 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स, राइट? आई होप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो गया? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब बच्चा आ जाता है यू नो कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अब आपको समझाना पड़ेगा मुझे किसका कॉन्सेप्ट? इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट मास को समझते हैं, ठीक है, कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो एक लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है। तो अब मैं आपको अच्छे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो अब देखो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट मी पुट ऑन द ब्यूटीफुल हेडिंग्स इन योर नोट्स। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं एग्जैक्टली इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास को अगर मैं समझूँ तो ना, एक मिनट बस मुझे कलर थोड़ा सा एडजस्ट करने दो, एंड देयर वी गो। देखो इक्विवेलेंट मास क्या है, लेट्स अज्यूम मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगी ना, आई थिंक दैट वुड मेक मोर सेंस टू यू। लेट्स से मैं कोई भी एक रिएक्शन ले रही हूँ, लेट्स से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे मुझे 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रही है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। यही तो हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रही है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यहाँ पे 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ 2 मोल मैग्नीशियम मतलब 1 मोल। एक मैग्नीशियम का मास कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कैसे, आप कैसे लिखते हो इसका सिंबल? 12 Mg24, राइट?
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास नंबर क्या होता है 24, राइट। तो अगर 1 मोल मैग्नीशियम का मास होगा 24 ग्राम्स, तो 2 मोल मैग्नीशियम एटम्स का मास यहाँ पे कितना होगा बच्चा, इट विल बी 48 ग्राम्स, ठीक है। ऐसे 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, राइट। तो इसका वेट कितना होगा 32 ग्राम। तो क्या मैं यहाँ बोल सकती हूँ सिर्फ 2 मोल ऑक्सीजन, मतलब 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि 48 ग्राम्स मैग्नीशियम 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। आई कैन से दिस इज वेल कि यहाँ पे 48 ग्राम मैग्नीशियम जो है 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको देखो कहने का एक बेटर तरीका क्या हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड देयर यू गो। 1 मिनट बच्चा, इसको सेम पेज पे ही मैं समझाना चाहती हूँ। सो लेट मी जस्ट रिड्यूस दिस फॉन्ट, ओके 1 सेकेंड, इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक। अब देखो समझने की कोशिश करना, 1 सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब अभी देखो अब मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। सो विल बी 8 × 48, यूनिटरी मेथड लगा लो, 8 × 48 डिवाइडेड बाई 32, 8 × 48 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, 4 × 1 = 4, 4 × 12 राइट। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम आ गया। कितना आ गया बच्चा, 12 ग्राम मैग्नीशियम आ गया। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। आप बोलोगे मैम है, इससे आपने इक्विवेलेंट मास क्या समझाया, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, वो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होता है। सो मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद 8 grams of oxygen is referred to as equivalent mass। तो ये जो 12 ग्राम आया ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम बच्चे। ये क्या है, ये बच्चे क्या है, दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम विच इज बेसिकली व्हाट, विच इज बेसिकली 12 ग्राम्स। क्या है ये, दिस इज 12 ग्राम्स। आई होप दिस मेड परफेक्ट सेंस टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू, डिड इट, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया, ठीक है, ओके। तो ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, या ठीक है। अब एक देखो, अब मैं और इसको बेटर समझाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके 1 मिनट, इसको चूज़ करने दो, लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस। अब देखो एक और बार समझाती हूँ ना, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। ओह माय गॉड, डिड द एंटायर थिंग गॉट डिलीटेड, 1 सेकेंड, नो दैट डिडंट हैव टू, आई नो व्हाई, 1 सेकेंड। या अब देखो, लेट्स से ओके 1 सेकेंड गाइस, आई डोंट नो व्हाई so much time to adjust, 1 sec, alright, there you go, okay। देखो अब देखो, अब एक काम करते हैं, इसको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आई थिंक दैट्स क्लियर एवरीवन। अब लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मैं लेती हूँ एग्जांपल अमोनिया गैस। हम कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और मिलती है हमें अमोनिया गैस NH3, राइट। बैलेंस करोगे अगर आप रिएक्शन को, तो यहाँ पे क्या है 3 मोल्स, यहाँ पे 3 कर दो, 3 2 से 6 है, यहाँ 2 कर दो, तो यहाँ 2 देखो। तो हम बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, अभी इक्वेशन बैलेंस है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 से 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 3 से 6 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस है। तो बच्चों मैं इस रिएक्शन को बोल सकती हूँ यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन जो है, 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आई कैन ऑल्सो से इट एज 28 ग्राम नाइट्रोजन, बिकॉज एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम्स होता है, 7 and 14, राइट। आई होप यू रिमेंबर दैट, 7 and 14। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम्स। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, तो 28 ग्राम्स। तो यहाँ मैं इसको बोल सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैं बोल सकती हूँ 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कितने के साथ, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है, 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है बच्चे वो 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 28 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन, यूनिटरी मेथड लगा दो, 28/6 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से करोगे, 2 3 6, 2 1 4, 14/3 कितना आ जाएगा, 14/3 ग्राम्स, 14/3 ग्राम्स नाइट्रोजन, कितना आ जाएगा 14/3 ग्राम्स नाइट्रोजन, राइट। तो अब इस केस में अगर बच्चे हम ध्यान से देखें, तो देखो
तो अब ये जो 14/3 ग्राम्स आया ना, इसको अगर आप फर्दर डेसिमल्स में सॉल्व करोगे सो यू कैन डू योरसेल्फ दैट फेवर, ठीक है। अभी जो 14/3 ग्राम्स आया ना बच्चे, ये एक्चुअली में इक्विवेलेंट वेट है नाइट्रोजन का। दिस इज एक्चुअली द इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन। अब बोलोगे मैम हैं, अब ये कैसे इक्विवेलेंट मास हो गया? क्योंकि अभी तो आपने बोला था इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन और थोड़ी मतलब इतनी एक सिंपल नहीं है। इट्स अ रेंज, राइट, इट्स अ ग्रेडेशन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का वो मास, ठीक है, जो या तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे या किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, वो भी उसका इक्विवेलेंट मास होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो हो नहीं रहा था, हाइड्रोजन के साथ हो रहा था, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे या 8 ग्राम नाइट्रोजन या 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, वो सब्सटेंस का क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है। आई होप दिस मेक्स 100% कंप्लीट सेंस टू एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, डज इट, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और बताऊँ आपको तो 1 सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर हम बात करें, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट्स से मैं एक और बताती हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ कैल्शियम का क्लोरीन के साथ। कैल्शियम का अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? CaCl2 मिलेगा, राइट, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल में हम क्या करें बच्चों, यहाँ पे हम कैल्शियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस्ड है, एक यहाँ पे भी एक कैल्शियम या 2 क्लोरीन करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो कि आप नहीं देख रहे हो, एक ध्यान से देखो, 1 second, let me choose some different interesting colors. Let's go with this. तो लेट्स से बच्चों यहाँ पे अगर हम 1 मोल कैल्शियम का रिएक्शन 1 मोल क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, राइट, 1 मोल कैल्शियम का रिएक्शन 1 मोल क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, राइट, तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, राइट। अब मैं इसको 1 मोल कैल्शियम का रिएक्शन 1 मोल क्लोरीन के साथ करा रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन ऑल्सो से मैं यहाँ पे 40 ग्राम कैल्शियम का रिएक्शन 71 ग्राम्स क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। फॉर दोज ऑफ यू जिनको ये नहीं समझ में आया कि वो 40 क्यों लिखा, 71 क्यों लिखा। कैल्शियम का आप कैसे लिखते हो? कैल्शियम आप ऐसे ही लिखते हैं 20 कैल्शियम 40, विच इज 20 इज बेसिकली द एटॉमिक नंबर, 40 इज बेसिकली द मास नंबर। इन द सेम वे हाउ डू यू राइट कैल्शियम? बच्चा हाउ डू यू राइट कैल्शियम? कैल्शियम आप लिखते हो सॉरी क्लोरीन कैसे लिखते हो? 17 Cl 35.5, राइट। एक क्लोरीन आटम का मास कितना होता है? 35.5 होता है, राइट। तो यहाँ पे एक क्लोरीन के एटम में, मतलब एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स है, तो एक क्लोरीन एटम का मास 35.5 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 35.5 प्लस 35.5 इल बी 71 ग्राम्स, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं 40 ग्राम कैल्शियम 71 ग्राम्स क्लोरीन के साथ क्या करें, मैं देखो इसको ऐसे लिखती हूँ 71 ग्राम्स क्लोरीन जो है 71 ग्राम क्लोरीन जो है, ठीक है, वो 40 ग्राम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? 40 ग्राम कैल्शियम के साथ। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने ग्राम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा? सो यू डू द यूनिटरी मेथड विच इज 35.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 71, ठीक है। अब इसको अगर बच्चे में सॉल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? 35 1s are, this is 2s are, 2 1s are, 2 20s are, this is 20 ग्राम कैल्शियम। बच्चे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 ग्राम कैल्शियम, राइट। 20 ग्राम कैल्शियम हो जाएगा। तो जो 20 ग्राम कैल्शियम है, ये जो 20 ग्राम कैल्शियम है बच्चा, ये क्या है? दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम। क्या है ये? ये है इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम। ये है इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, ठीक है। क्या है ये? इक्विवेलेंट मास है कैल्शियम का। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। आप बोलोगे हैं, बोलेंगे मैम व्हाट द हेल इज हैपनिंग, आप कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। या बिकॉज द डेफिनेशन इज सो ह्यूज एंड इट हैज़ लाइक सो मेनी लेयर्स टू इट। अब देखो आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं, एक और डेफिनेशन है, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, वो सब्सटेंस का क्या हो जाता है बच्चे? वो सब्सटेंस का हो जाता है इक्विवेलेंट मास, राइट, ठीक है बच्चों। तो नाउ लेट्स एक्चुअली लुक एट द एक्चुअल इक्वेशन, राइट। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? 1 सेकेंड यार, एक तो ये मैंने इतने सब कुछ कलर रंग बिरंगे कर रखे हैं, देखो समझते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चा? इक्विवेलेंट मास इज बेसिकली इट इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो रिएक्ट करता है या लिबरेट कराता है 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन। इतनी डेफिनेशन हमने कवर कर लिया, राइट। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, या किसी सब्सटेंस का वो मास 80 ग्राम ब्रोमीन से, 108 ग्राम सिल्वर से या 127 ग्राम आयोडीन से या 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करता है, उसे उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। तो आई होप इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन समझ में आ रही है, राइट। वंस अगेन, किसी भी सब्सटेंस का वो मास, इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो रिएक्ट करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से या 80 ग्राम ब्रोमीन से या 108 ग्राम सिल्वर से या 127 ग्राम आयोडीन से या 1 मोल इलेक्ट्रॉन से, उसे सब्सटेंस का बच्चे क्या बोलते हैं? उसे हम सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। आई होप दिस मेड परफेक्ट सेंस टू इट। अब बच्चों सॉल्व करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है।
तब देखो द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी राइट ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, अभी इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें 60% मेटल है बाय मास, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस मेटल। आई होप द क्वेश्चन मेड परफेक्ट सेंस टू एवरीवन, डिड इट? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मेटल ऑक्साइड है, सो सॉरी गाइस, काइंडली एक्सक्यूज द बैकग्राउंड नॉइस, देयर सम कंस्ट्रक्शन वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन, सो यू नो इन द नेबरहुड, so you'll have to bear with it, but I really hope, you know, especially, you know, while they're actually doing all this grinding and all, I'm trying to actually increase the pitch of my volume, but I really hope you can bear with it for a couple of minutes, right? अब देखो मेटल ऑक्साइड की, जैसे मैंने बोला, मेटल ऑक्साइड में बच्चों 60 ग्राम हमारा, सॉरी 60% एक मेटल ऑक्साइड है, इसमें 60% हमारे पास मेटल है बाई मास। आपको इक्विवेलेंट मास बताना है इस मेटल का, तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, ये पहली बात, ये मेटल ऑक्साइड बनी कैसे होगी, मेटल होगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन होगा। एक काम करती हूँ, मैं एक ब्लैंक स्क्रीन लेती हूँ, उसमें समझाती हूँ, ठीक है, जस्ट लेट मी टेक अ ब्लैंक स्क्रीन, 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी। एक ब्लैंक स्क्रीन लेके, और ग्रीन कलर कहाँ गया हमारे पास, हमारा अच्छा वाला ग्रीन का है, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ओपन द ग्रेडियंट, वेयर इज द ग्रेडेशन, देयर इज द ग्रेडेशन, वेयर इज द स्पेक्ट्रम, एंड देयर यू गो, ओके, हाँ, ऑलराइटी, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं एक्चुअली में समझाने की कोशिश करते हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तब ये देखो मेटल ऑक्साइड बनी कैसे होगी, हमारे पास ये मेटल है, ठीक है, मेटल ने रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और हमें मिला होगा ये मेटल ऑक्साइड, राइट। मेटल ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और आपको मिला मेटल ऑक्साइड, राइट। मेटल ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, आपको मिला मेटल ऑक्साइड। अब हमने उसमें क्वेश्चन में लिखा है मेटल ऑक्साइड कंटेन 60 ग्राम मेटल बाय मास, ठीक है, 60% मेटल बाय मास। 60% मतलब कोई मेटल ऐसे सब्सटेंस 100% है, 100% में से अगर 60% मेटल है, यानी 60 ग्राम मेटल है, 60 ग्राम मेटल है, और रिमेनिंग 40 ग्राम्स क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ, हाउ कैन आई डिफाइन इट, मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 60 ग्राम मेटल 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। आई कैन ऑल्सो से दिस आर कि यहाँ पे 40 ग्राम ऑक्सीजन जो है, 40 ग्राम ऑक्सीजन जो है बच्चे, वो 60 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। 40 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 60 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, 40 ग्राम ऑक्सीजन अगर 60 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चे, तो ये जो 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये कितने ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। सो ऑफकोर्स यू डू द यूनिटरी मेथड, 8 × 60 डिवाइडेड बाय 40 अगर मैं करूँगी तो 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, 5 × 1 = 5, 5 × 12 = ठीक है। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12 ग्राम मेटल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ग्राम मेटल, राइट, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम क्या हो जाएगा, दिस 12 ग्राम इज बेसिकली द इक्विवेलेंट मास। ये 12 ग्राम क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ अ मेटल। 12 ग्राम क्या हो जाएगा, 12 ग्राम विल बेसिकली बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, राइट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बोला ना, इक्विवेलेंट मास को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चा, इक्विवेलेंट मास को हम डिफाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन या 1 ग्राम हाइड्रोजन या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन या फिर 80 ग्राम ब्रोमीन या 100 यू नो, या फिर हमारे पास 108 ग्राम सिल्वर या 127 ग्राम आयोडीन के साथ रिएक्ट करे, वो उसका इक्विवेलेंट मास होता है। तो देखो यहाँ पे 12 ग्राम मेटल जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो 12 ग्राम है बेसिकली दिस इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल, दिस इज़ बेसिकली द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। आई होप दिस इज मेकिंग परफेक्ट सेंस टू एवरीवन, इज इट? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और ऐसा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। और तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारे पास 74.5 ग्राम्स मेटालिक क्लोराइड है, उसमें 35.5 ग्राम क्लोरीन है, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, राइट। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारे पास 74.5 ग्राम्स हमारे पास मेटल क्लोराइड है, ठीक है। 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड में से 35.5 ग्राम तो क्लोरीन ही है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि एक्चुअली में इक्विवेलेंट मास क्या है मेटल का, राइट, इक्विवेलेंट मास क्या है मेटल का। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड खोलते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ, 1 सेकेंड। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, राइट। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि मेटल क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड बच्चा बना कैसे होगा, मेटल जब मेटल ने एक्चुअली में क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया होगा, जब मेटल ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया होगा तो हमें मिला होगा मेटल क्लोराइड। मेटल ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया होगा तो क्या मिला होगा, मेटल ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया होगा तो मिला होगा मेटल क्लोराइड। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड है, क्या है 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड है, ठीक है। इस 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड में से हमारे पास 35.5 ग्राम तो क्लोरीन ही उन्होंने बताया, ठीक है। तो मेटल कितना होगा, मेटल को लेते से x ग्राम अज्यूम कर लेते हैं तो ये हम निकालेंगे, क्योंकि ओवरऑल मेटल क्लोराइड का जितना भी मास है वो दो चीज़ों की वजह से ही तो होगा, मेटल और क्लोरीन की वजह से। तो अगर मेटल तो क्लोरीन 35.5 ग्राम है तो मेटल कितना होगा, x इज इक्वल टू 74.5 ग्राम में से अगर आप 35 पॉइंट इसको उधर ले जाओ तो ये 35.5 ग्राम माइनस हो जाएगा,
ठीक है 74 ग्राम्स में से 74.5 में से अगर आप ये क्लोरीन का मास बता दो, तो जो भी बच्चा कुछ मास है वो मेटल का ही है, तो मेटल का मास कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, या 14 में से 5 गया 9, और यहाँ 6 में से 3 गया 3, 39 ग्राम्स आ जाएगा, राइट। तो 30 ग्राम, ये 39 ग्राम्स क्या है, 39 ग्राम मेटल का मास आ गया। दिस इज द मास विच इज़ प्रेजेंट इन द मेटल क्लोराइड, ठीक है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि यही इसका इक्विवेलेंट मास है, तो वुड यू बिलीव मी, एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट से कि मैम हाउ, ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला था, इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास होता है जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें दे ही इस तरीके से रखा है कि 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड है, उसमें 35.5 ग्राम क्लोरीन है, और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 39 ग्राम आई। तो यहाँ पे 39 ग्राम मेटल जो है, 39 ग्राम मेटल जो है वो एक्चुअली में किससे रिएक्ट कर रहा है, 39 ग्राम मेटल जो है वो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस का वो मास, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करे, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करे, वो सब्सटेंस का क्या होता है, वो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होता है। तो आप समझ में आया, लाइक हाउ डू यू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप यू नो यू आर फाइंडिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटिवली ईजियर टू सॉल्व एंड इट्स मेकिंग सो मच मोर सेंस, इज इट। आप एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, जिस क्वेश्चन नंबर 3, पुट ऑन द ब्यूटिफुल हेडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अगर इक्विवेलेंट मास सल्फर का SCl2 में, सल्फर डाइक्लोराइड में 6 है, तो देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन H2Cl2, राइट। तो देखो ऑल्दो यहाँ पे इसका कोई भी पैरेलल नहीं है, ये बोल रहे हैं कि अगर सल्फर का मास SCl2 में, सल्फर का इक्विवेलेंट मास HCl2 में एक्चुअली 6 है, मतलब 6 है, ठीक है। तो सल्फर का मास H2Cl2 में कितना होगा। तो ऑल्दो ये 2 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एंड दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस, दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस एंड आई विल प्रूव इट टू यू हाउ, ठीक है। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा, सल्फर का इक्विवेलेंट, ध्यान रखो क्वेश्चन में पूछा क्या, हमसे पूछा सल्फर का इक्विवेलेंट मास इन H2Cl2, राइट। तो लेट्स जस्ट सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, साथ में ब्लैंक स्लाइड खोल लेती हूँ मैं, जस्ट अ मोमेंट एवरीवन एंड देयर यू गो, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं, देखो तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, अल्टीमेट कंपाउंड है H2Cl2, बट ये आया कैसे होगा, अगर हम देखें ये आया कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर ने रिएक्ट किया होगा क्लोरीन के साथ, सल्फर ने रिएक्ट किया होगा क्लोरीन के साथ, आपको H2Cl2 मिला। यहाँ देखो 2 सल्फर है, तो यहाँ पे भी 2 सल्फर आ जाएंगे, 2 क्लोरीन रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि 2 मोल सल्फर जो है वो 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, मुझे ये वाला कंपाउंड दे देता है, राइट। 2 मोल सल्फर जो है वो 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मुझे ये वाला कंपाउंड दे देता है, राइट। यही तो समझ आ रहा है, 2 मोल सल्फर 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड दे देता है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो या है ना, ये होता है। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ, जैसे 1 मोल क्लोरीन एक्चुअली 2 मोल सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ 1 मोल क्लोरीन में 2 जगह 2 सल्फर के एटम्स हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। तो एक क्लोरीन के अगर मास 35.5 है तो 2 का कितना हो जाएगा 71। तो यहाँ मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि 71 ग्राम क्लोरीन जो है, 71 ग्राम क्लोरीन 2 मोल सल्फर, 1 मोल सल्फर कितना होता है बच्चा। और सल्फर का बहुत बच्चे को एक्चुअली में कन्फ्यूजन होता है, सल्फर क्या होता है 16s32, ये सब बच्चे याद रखने होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में बताए थे सब कुछ, सब सारे पूरे फर्स्ट 12 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स और उनके मास नंबर सब कुछ कराया था कि नहीं। आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू विल रिमेंबर इट, बट दैट्स द कोर बेसिक्स ऑफ द एंटायर केमिस्ट्री, राइट। तो यहाँ पे 71 ग्राम्स क्लोरीन जो है वो 2 मोल सल्फर के साथ। अब 1 मोल सल्फर का मास कितना होगा 32 ग्राम, 2 मोल का कितना होगा 64, डबल कर लो 64 ग्राम्स। तो 71 ग्राम क्लोरीन जो है वो 64 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, 71 ग्राम क्लोरीन 64 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। यही तो होगा, 71 ग्राम क्लोरीन 64 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा। तो बच्चे 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, 35.5 ग्राम क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, 35.5 ग्राम क्लोरीन, ठीक है। कितने अगर 71 ग्राम क्लोरीन 64 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, 35.5 ग्राम क्लोरीन, यूनिटरी मेथड लगा दो, 35.5 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 71, ठीक है। तो अब बच्चे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व करो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व इट, ठीक है, एंड नॉट जस्ट सिट लाइक दैट। 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 ज़ा 32 ग्राम्स आ रहा है, कितना आ रहा है 32 ग्राम सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम सल्फर के साथ, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन या 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर या फिर 80 ग्राम ब्रोमीन या 108 ग्राम सिल्वर, ठीक है, इन सब की या 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करे, वो सब्सटेंस का क्या होता है इक्विवेलेंट मास। तो इस रिएक्शन में ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया 32 ग्राम सल्फर इज बेसिकली द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इन H2Cl2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है।
अब देखो, अब हाउ डू यू एक्चुअली कैलकुलेट दिस होल कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट मास इतनी देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं, हाउ डू यू गो अबाउट इट। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इक्विवेलेंट मास अगर आपको मान लो इन जनरल किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो ये तो हो गया रिएक्शन में, और मान लो व्हाट इफ लेट्स से अगर आपको रिएक्शन ना दे रखा हो तो इन जनरल हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, लाइक हाउ डू यू रीच दैट स्टेज। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखा रही हूँ हाउ डू यू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स, हाउ डू यू कैलकुलेट दैट। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एंड विल डू इट टुगेदर, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, पूरा नहीं होगा कि एक बार में सिलेक्ट, 1 मिनट बच्चा पार्टी। अरे यार, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, ये भी सिलेक्ट हो जाता है इसके साथ। ओह नहीं होगा, 1 मिनट, ठीक छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो हो गया अपना इक्विवेलेंट मास। मैं आपको समझाती हूँ लाइक व्हाट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, समझना आप इसको। ठीक, अब देखो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मतलब इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे रही हूँ। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू बेसिकली मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो भी मोलर मास है डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज वैलेंसी। वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी। देखो हम सबको पता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, यू नो दे हैव एन इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, राइट। तो एंड उनकी कॉन्स्टेंटली विच इज़ वाई दे कॉन्स्टेंटली बॉन्डिंग विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स क्यों बना रहे हैं, ठीक है, क्यों एक दूसरे का रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनका जो आउटर शेल है विच इज़ द वैलेंस शेल दैट इज इनकम्प्लीट, वो फुली फिल नहीं है। एंड एवरीबडी वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी इन लाइफ। आज हम भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, व्हाटएवर वी आर डूइंग सो दैट वी रीच अ मोर स्टेबल इन अ मोर स्टेबल प्लेस, राइट। हम एक और स्टेबल जगह। तो हर एलिमेंट में ऐसे इसलिए कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, लाइक कितने आपने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या लूज किए या शेयर किए इन ऑर्डर टू अचीव द कम्प्लीटली फुल्ड वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, लूज किए, शेयर किया, दैट इज एक्चुअली रेफर टू एज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो वो थी वैलेंसी। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको इसको समझाऊंगी तो आई थिंक दैट वुड रिलेटिवली मेक मोर सेंस। सो लेट मी टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। लेट्स से 1 मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, चूज अ डिफरेंट कलर, ग्रीन या। तो लेट्स से बच्चों मेरे पास लेट्स से मैं टॉप बात करूँ इक्विवेलेंट मास निकालना है लेट्स से सोडियम एटम का। तो सोडियम एटम का मोलर मास कितना होता है, इट इज़ 23। तो बार बार सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, सोडियम यूजुअली अगर देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको अभी एक्चुअल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद, इससे एक्चुअल वाला याद होना चाहिए, विच इज़ बेसिकली 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर सोडियम को अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो वो जो 3s में जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको लूज़ कर देता है, राइट। तो सोडियम बेसिकली क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है एंड एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड टू Na+, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो इसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी मैंने क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर्ड टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, 1। तो 23/1 मोलर मास अपॉन वैलेंसी विच इज 23 ओनली। तो इन जनरल इक्विवेलेंट मास सोडियम का क्या होता है, 23 ग्राम्स ओनली। व्हाट इज इट, इट्स 23 ग्राम्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स की मदद से और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। लेट्स से मैं आपसे बोलूँ इक्विवेलेंट मास बताओ मुझे मैग्नीशियम का कितना होगा। इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम का क्या होता है, गिवन मास विच इज 24 डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास होता है 12 × 12, ठीक है। सॉरी क्या होता है इक्विवेलेंट मास, क्या होता है मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। तो इसका मोलर मास कितना होगा, 24। ये तो हम सबको पता है 24 ग्राम्स होता है। मैग्नीशियम क्या होता है 12 mg 24, तो 24 ग्राम्स जो होता है मैग्नीशियम का मोलर मास होता है डिवाइड बाय वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है मैग्नीशियम की, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, मैग्नीशियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तो मतलब देखो इसके मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 होने चाहिए, 2 हैं। तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, अटेन्स द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज नियॉन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैग्नीशियम यूजुअली क्या करता है, मैग्नीशियम इट बेसिकली गिव्स अप इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैग्नीशियम यूजुअली बच्चे क्या करता है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Mg2+ में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mg2+ में। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। बेसिकली आई वाज जस्ट मेकिंग सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज द वैलेंसी बेसिकली। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2, राइट। तो मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, तो 2 × 2 2 12 तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया मैग्नीशियम का, इट इज 12 ग्राम्स। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू नाउ, ठीक है। मैं एक स्टेप, आई एम नॉट इवन स्किपिंग वन सिंगल डैम स्टेप, राइट। सो आई होप इट इज अपेरेंटली मेकिंग सेंस टू एवरीवन, राइट। इट शुड, बिकॉज, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेट्स से एक और कोई एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं।
कमी थोड़ी है हमारे पास। लेट्स से एल्यूमिनियम डिस्कस कर लो, कोई भी कर लो यार, एलिमेंट्स की कमी थोड़ी है। लेट्स से मैं आपसे बोलूँ इक्विवेलेंट मास निकालना है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी इज बेसिकली द इक्विवेलेंट मास। दैट्स हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट इट। ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, राइट? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट, दिस इज हाउ यू डू इट, राइट? तो ऐसे ही करते हो। तो अब देखो मोलर मास क्या होता है एल्यूमिनियम का? इट्स 27 ग्राम्स, ठीक है। एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं? एल्यूमिनियम 27, दिस इज हाउ यू राइट इट। जनरली ऐसे लिखते हैं, तो डेसिमल में होता है एग्जैक्ट मास, ठीक है, बट हम राउंड ऑफ करके 27 ग्राम की अज्यूम करते हैं। मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? एल्यूमिनियम का एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 3s2, 3p1। तो अगर आप ये थर्ड शेल देखो, जिस थर्ड शेल, तो इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 1 इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3p1, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पी में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। तो इस केस में बच्चे क्या होगा? इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। थर्ड शेल में मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे अपेरेंटली कितने चाहिए? 8। तो या तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करूँ या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दो। 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना विल बी रिलेटिवली डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू लूजिंग 3, तो आई विल रादर लूज 3 एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एल्यूमिनियम डज नॉट। आई विल लूज, आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी लेट गो ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो ये एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्यूमिनियम जो है बेसिकली लेट्स गो विथ 3 इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम 3 प्लस में। किस में कन्वर्ट हो गया? एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम 3 प्लस में, राइट? यही तो हुआ। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज बेसिकली तो वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। वैलेंसी कितनी हो गई? अच्छा, वैलेंसी हो गई 3। क्या हो गई? 3 हो गई वैलेंसी, राइट? इस केस में अगर मुझे इससे सॉल्व करना हो तो मेरे पास इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? 3 बनता, 3 9 27, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा इस केस में? 9 ग्राम आ जाएगा। आई होप इट्स मेकिंग सेंस, राइट? तो मैं आपको 2 होमवर्क दे रही हूँ उसमें, एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू कैलकुलेट इट एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट, ठीक है। मैं 2 होमवर्क दे रही हूँ, नोट डाउन करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो कि इनका इक्विवेलेंट मास क्या होगा ना। आई रियली होप यू अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स, ठीक है। तो लेट्स से कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, लेट्स से आप कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट मास मुझे बताओ ऑक्सीजन का, इक्विवेलेंट मास बताओ मुझे ऑक्सीजन का, और एक और कोई एलिमेंट ले लेते हैं लेट्स से। अब आप और मुझे इक्विवेलेंट मास बताओ लेट्स से क्लोरीन का। किसका बच्चे? क्लोरीन का, और इक्विवेलेंट मास बताओ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो बेसिकली दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर आंसर्स, राइट? तो आई होप बच्चा ये तो सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ये तो मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स एलिमेंट नहीं और अगर कोई आयन है उस केस में क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। आप क्या करेंगे? 1 सेकेंड, इसको हटा दो यार, 1 मिनट, ओके। अब देखो, अगर मान लो अब आपको लेट्स से कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन्स, लेट्स से, है ना। अभी तक हमने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स, अब हम बच्चे कैलकुलेट करें इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन्स। क्या कैलकुलेट करें? इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन्स, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन्स अगर कैलकुलेट करना है तो यू नो हाउ डू यू डू दैट, ठीक बच्चा। तो अब देखो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ हाउ डू यू एक्चुअली कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन्स, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स डू इट टुगेदर एंड देयर यू गो, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास लेते हैं, अगर कोई भी आयन ले, तो मैं पहले एक जनरल फॉर्मूला डिफाइन कर दे रही हूँ। इक्विवेलेंट मास लेते हैं आपको कैलकुलेट करना हो तो इक्विवेलेंट मास होता है इट्स ग्राम फॉर्मूला मास, मतलब वो जो भी फॉर्मूला है, मतलब जो भी यू नो आपका आयन का फॉर्मूला होगा उसके ग्राम में मास लिखो, ग्राम फॉर्मूला मास divided by magnitude of charge, divided by what? Divided by magnitude of charge on that ion, divided by magnitude of charge। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कोई भी एक ले लो, जैसे आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, लेते मैं बोल दूँ कार्बोनेट आयन का, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहले ऊपर मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है ग्राम फॉर्मूला मास। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम फॉर्मूला मास? ये जो भी आयन है इसका मास ग्राम्स में, तो कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास 16, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आइटम्स है, तो 16 3 का कितना हो जाता है? 16 3 का हो जाता है 48, 16 3 का 48, ठीक है। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका चार्ज कितना है? -2, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2, राइट। तो ये हो जाएगा 48 + 12 हो जाएगा 60, 60/2 विच इज़ 2 × 2 230 था। यहाँ पे एक्चुअली कार्बोनेट आयन का ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 30 ग्राम। आई होप दिस इज मेकिंग परफेक्ट सेंस टू एवरीवन, इज इट? ठीक है। अब एक काम करते हैं और इसको करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा बारी, अरे ये क्या हुआ? 1 मिनट। इक्विवेलेंट मास, अरे यार ये थोड़ा सा 1 मिनट देना को, जस्ट मोमेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस, ठीक। अब देखो
अब और एक्चुअली में अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, सो लेट्स डू इट टुगेदर। लेट्स से अब मैं आपसे बोलूँ बच्चा कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट मास ऑफ लेट्स से नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट NO3 माइनस, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो। सबसे पहले ग्राम फॉर्मूला मास, नाइट्रोजन का मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन आटम का 14, ठीक है, और फिर एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आटम है, 16 3 कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, -1 का चार्ज है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा। 14 + 48, 14 + 48 कितना होता है 8 + 4 सॉरी 4 + 8, 4 + 8 12 का 2 कैरी लगा 1, 4 5 6 62 आया ना, 62 डिवाइड बाय 1 विच इज अगैन 62 ओनली। 62 ग्राम्स बेसिकली बिकम्स द इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रेट आयन। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, ठीक है। एक और लेट्स से कैलकुलेट कर लो, एग्जाम्पल्स की कमी थोड़ी है, भत्तेरे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। kindly excuse the language भत्तेरे, you know, so suddenly I go from, you know, I suddenly go from all the way from the American accent to भत्तेरे, so that happens with me, kindly bear with it। इक्विवेलेंट मास लेते हैं हमें कैलकुलेट करना ऑक्सीजन का लेते हैं या फिर ऑक्सीजन का, ठीक है, O2 माइनस का लेते हैं, O2 माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन पे यूजली 2 माइनस का चार्ज होता है, आप मुझे बताओ। तो ऑक्सीजन का ग्राम फॉर्मूला मास का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम्स, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज़ 2, राइट। तो 2 1 2 8 16, राइट। तो बच्चा कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन आयन, इट्स 8 ग्राम्स, कितना हो जाएगा 8 ग्राम्स, ठीक है। 6 की अगर फिर मैं बात करूँ, 6 से हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फेट PO4 3 माइनस, कितना हो जाएगा PO4 3 माइनस, इट्स गोना बी PO4 3 माइनस, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो। देखो फॉस्फोरस का इक्विवेलेंट मास, फॉस्फोरस का मास कितना होता है, फॉस्फोरस होता है 15P31, राइट। सो इसका मास नंबर होता है 31, राइट। सो यहाँ पे 34 ग्राम फॉर्मूला मास, तो एक फॉस्फोरस के लिए 31, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 16 4 द 64 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा 3, तो 64 या 4 + 1 5 6 + 3 9 95/3 ग्राम्स, दैट बिकम्स द इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा लाइक हाउ डू यू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें मैं लेट्स आपको एक होमवर्क दे दूँ, ठीक है, होमवर्क नोट डाउन करो जल्दी से, होमवर्क देती हूँ एक, जैसे उसमें मैंने दिया ना 2 आपको, अब इसमें भी कैलकुलेट करके बताओ मुझे। ऐसे मैं होमवर्क में आपको दे रही हूँ, अब मुझे बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ लेट्स से मैग्नीशियम 2+ Mg2+ आयन, इसका मुझे इक्विवेलेंट मास बताओ, आई लव टू नो इट, ठीक है। ये हो गया। अब हम तीसरा समझेंगे इक्विवेलेंट मास अगर मान लो किसी कंपाउंड का निकालना है, लेट्स टॉक अबाउट आयनिक कंपाउंड स्पेसिफिकली, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ डू यू अप्रोच दैट। एक मिनट अच्छा बाय, अरे यार ये क्यों हो कर रहा है, आई डोंट गेट इट, वन सेक, लेट मी गो, लेट्स गो ऑफ दिस, ये ठीक है भाई, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, क्या हुआ ये, एक मिनट, काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दिस। जस्ट अ मोमेंट किड्स, ठीक। अब एक्चुअली जो नेक्स्ट टॉपिक जिसमें मूव ऑन करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, राइट। व्हाट आर वी गोना बी कैलकुलेटिंग, वी आर गोना बी कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की अगर मुझे बात करनी है, तो हम देखो आयनिक कंपाउंड्स के केस में बच्चा इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इट्स बेसिकली अगैन द मोलर मास। ऊपर आप ले लो उस कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मोलर मास कितना है, ओवरऑल मोलर मास कितना है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय दिस, देखो मान लो कोई भी लेट्स से आयनिक कंपाउंड है, लेट्स से NaCl ले लो, तो ओवरऑल आयनिक कंपाउंड तो न्यूट्रल होगा ना, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा Na पे +1 Cl पे -1 +1 -1, तो ओवरऑल तो आयनिक कंपाउंड यू नो न्यूट्रली होगा। तो या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो विच इज़ +1 या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो विच इज़ -1, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो। और यहाँ पे पूरा मोलर मास से मेरा क्या मतलब, पूरे के पूरे NaCl का जो ओवरऑल मास है, यू कैन टेक दैट। तो आई होप इतना समझ में सबको आया कि एग्जैक्टली हाउ डू यू अप्रोच दिस, ठीक है, इतना सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अब इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे, दैट्स द ट्रिकी पार्ट।
तो मैं लेट्स से NaCl के एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर हमने NaCl को ही डिस्कस कर लिया तो लेट्स से एग्जांपल में NaCl डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंट मास वैसे आपको कैलकुलेट करना है NaCl का। सबसे पहले आप लोगे NaCl का मोलर मास। मोलर मास कैसे लोगे? सोडियम का बच्चे मोलर मास कितना होता है? सोडियम का मोलर मास हम सबको पता है। अगर मैं वैसे यहाँ लिखूँ, सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23, राइट। और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का हम सबको पता है 35.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? आई विल डू 23 + 35.5, दैट बिकम्स द मोलर मास ऑफ NaCl डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कितना है था? 1। Na पे +1, Cl पे -1, तो मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। आप तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो, टोटल नेगेटिव ले लो। अब इन दोनों का जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 58.5 डिवाइड बाई 1। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास इक्विवेलेंट मास कितना आ गया NaCl का? 58.5 ग्राम्स। कितना आ गया? 58.5 ग्राम्स। आई होप समझ में आ गया सबको, मज़े आ गए, आई मीन समझ आ गया, एंड समझ आ गया, आई मीन उससे ज़्यादा बेटर मज़े क्या ही हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। समझ आ गया इतना, ठीक है। उसको और डिस्कस करते हैं, चलो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं उस पर, ठीक है, एंड देन वी विल एक्चुअली मूव ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्विंग एस्पेक्ट। लेट्स से एक और कोई भी एग्जांपल ले लो बच्चे। लेट्स से Na2SO4 ले लो, सोडियम सल्फेट, ठीक है। सोडियम सल्फेट का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो ऊपर क्या मोलर मास कैसे निकालोगे? एक सोडियम का लेट्स से 23 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 23 प्लस एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 64, 16 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं चार्ज की बात करूँ तो चाहिए कैसे स्प्लिट होता है? ये होता है Na पे +1 का चार्ज होता है और SO4 पे 2- का चार्ज होता है। तो हम कैसे निकालते हैं? ये बैक क्रॉस कर देते हैं, बैक क्रॉस करके जो निकालते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2Na+ और यहाँ पे एक सल्फेट पे 2- तो +2 -2, एक पे +1 दो पे +2 और यहाँ पे -2, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे। तो या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों में किसी का ही मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2SO4। समझ में आया? ऐसे ही अब मान लो और एग्जाम्पल्स लेट्स से अगर डिस्कस करूँ, ठीक है। ऐसी बाकी सारे एग्जाम्पल्स जैसे ऐसे ही होंगे, इसमें ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, फंडामेंटल रिमेन्स द सेम, राइट। लेट्स से इक्विवेलेंट मास मैं आपसे बोलूँ कैलकुलेट करो MgSO4। लेते हैं MgSO4 जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। इसका रिएक्शन कैसे होता है? मैग्नीशियम पे +2 होता है Mg+2 और SO4 पे -2, SO4 2- Mg+2 SO4 2-। अब मैं बोला आप मुझे ये मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके बताओ। इक्विवेलेंट मास अगर मुझे MgSO4 का कैलकुलेट करना है तो MgSO4 का जो भी मोलर मास है, लेट्स से हमें कैलकुलेट नहीं करें। मैग्नीशियम का हम सबको पता है 24 होता है, सल्फर का 32, फिर ऑक्सीजन का वो सब यू डू दैट फॉर योरसेल्फ। तो लेट्स से मैं अज्यूम कर रही हूँ मोलर मास है M, ठीक है। और एक्चुअली इसमें मतलब वो कितना होगा? टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज +2 पॉजिटिव है और मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज -2 से मैग्नीट्यूड लिखना है तो 2, राइट। एंड दिस वंस यू सॉल्व इट यू एक्चुअली गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ MgSO4, ठीक है। इतना बच्चा सबको समझ में आ गया है, रियली होप से समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। एक मैं काम करती हूँ, मैं एक होमवर्क भी दे देती हूँ इसमें। लेट मी गिव अ होमवर्क, ठीक है, बिकॉज मैं सब में इसमें एक होमवर्क दे रही हूँ टॉपिक्स में, तो मेक श्योर यू काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट और इन सारे होमवर्क को एक सिंगल कमेंट पे आप जस्ट सॉल्व करके ड्रॉप कर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक आयनिक कंपाउंड दे रही हूँ, मुझे बताना उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा। मैं आपको आयनिक कंपाउंड दे रही हूँ, लेट्स से Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब देखो अगर मैंने हिंट चाहिए तो मैं हिंट आपको ये एक रिएक्शन लिख दे रही हूँ आपके लिए कि ये देखो ये कंपाउंड टूटेगा कैसे? आयन में बैक क्रॉस करोगे तो 2- यहाँ पे जाएगा, पहले के टाइन आता है फिर एनायन और ये 3+ का चार्ज इधर आएगा, तो ये स्प्लिट होगा एल्यूमिनियम 3+ और SO4 2- किस पे? SO4 2-। अब यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम 3+ और यहाँ 3 सल्फेट है तो 3 SO4 2-। यही आएगा, यही आएगा, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? बेसिकली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास। क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपको कैलकुलेट करना है। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। सबको समझ आया? अब हम देखो, मैं एक्चुअली मैं क्या करूँगी ना, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट समराइज द होल प्रोसेस फॉर यू, लेट मी जस्ट समराइज एवरीथिंग, ओके। आप टिल नाउ बहुत सारी चीज़ें आपने इक्विवेलेंट मास ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, आयंस, आयनिक कंपाउंड सबके लिए मैं एक्चुअली समराइज कर दी। लेट मी जस्ट सम इट अप फॉर ऑल ऑफ यू। सो इन अ सिंगल सीट पे एक काम करती हूँ, लेट मी जस्ट 1 मिनट, लेट मी जस्ट डू वन थिंग। एक यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स, लेट मी जस्ट क्रिएट दैट, ठीक है। इसको मैं फिल कर दूँ विद ब्लैक कलर होने में भी नहीं यार, ब्लैक से करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, देखो ब्लैक से कर देते हैं, है ना। मैं काम करती हूँ इसको ना समराइज़ कर देती हूँ फॉर ऑल ऑफ़ यू, वंस एंड फॉर ऑल, सबके लिए समराइज़ कर देते हैं कि एग्जैक्टली अभी तक हम क्या डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सो 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट, ओके, इट शुड बी प्रेजेंटेबल, राइट। तो देखो अब मैं आपको इक्विवेलेंट मास को एक्चुअली मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ
इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस? इक्विवेलेंट मास बचा होता है किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है? ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो होता है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर जो होता है बच्चे, ये एन फैक्टर बन जाता है एलिमेंट्स के केस में। एलिमेंट्स के केस में ये एन फैक्टर क्या हो जाता है? एलिमेंट्स के केस में ये जो एन फैक्टर है, दिस इज वैलेंसी, राइट? दिस इज व्हाट? दिस इज वैलेंसी। ठीक है, आयंस के केस में अगर बात करेगा, आयंस के केस में अगर बात करेगा तो आयंस के केस में ये जो हमारा एन फैक्टर है बच्चे, ये क्या हो जाता है? आयंस के केस में हमारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आयंस के केस में हमारा एन फैक्टर क्या हो जाता है? आयंस के केस में हम यही तो करते हैं इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, मोलर मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और उसके बाद लास्ट हो गया हमारे पास आयनिक कंपाउंड। अगर मान लो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो हम क्या करते हैं? मोलर मास डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो उस केस में जो एन फैक्टर है वो क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, आइदर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड। आई होप दिस इज मेकिंग परफेक्ट सेंस, सबको समझ आ गया? एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू गो अबाउट इट एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू अप्रोच इट। ठीक है, तो अब देखो, अब एक काम करते हैं, ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, आगे का समझते हैं एग्जैक्टली, यू नो हाउ डू यू गो अबाउट इट। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया बच्चे इक्विवेलेंट मास का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको इक्विवेलेंट मास अब डिस्कस करते हैं एसिड या बेसिस या उन सब के लिए कि यू नो उनके लिए हम एक्चुअली कैसे डिफाइन करते हैं इसको। वन सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, जस्ट अ मोमेंट। देखो, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? ठीक है, अब मैं अगर मुझे कंक्लूड करना हो, ठीक है, इफ आई हैव टू कंक्लूड इट, लेट मी जस्ट पुट द हेडिंग्स। अगर मुझे इसे कंक्लूड करना हो तो कंक्लूजन क्या निकाला सो फार? तो फिर हमने इक्विवेलेंट मास डिस्कस करना स्टार्ट किया। व्हाट इज बिन द कंक्लूजन? जनरल कंक्लूजन क्या निकाला कि बेसिकली इक्विवेलेंट मास होता है बच्चे, इक्विवेलेंट मास होता है बेसिकली मोलर मास कंपाउंड का, बेसिकली मास, चाहे वो फिर आयन हो चाहे कोई, उसका फॉर्मूला मास बेसिकली है तो ओवरऑल मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब आप बोलोगे मैम आपने ये नई टर्म क्या इंट्रोड्यूस कर दी, एन फैक्टर? अब मैं बताऊंगी ना, इसको मैं एन एफ से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, एन एफ, एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर वैलेंसी होगा, ये एन फैक्टर वैलेंसी होगा जब मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है एलिमेंट्स का। जब मुझे इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है, वन सेकेंड, ये एन फैक्टर क्या होगा? ये एन फैक्टर वैलेंसी होगा जब मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है एलिमेंट्स का। ठीक है, ये एन फैक्टर बेसिकली, एन फैक्टर चार्ज होगा अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है आयंस का। किसका? आयंस का। और यही ये एन फैक्टर बेसिकली मेरे पास होगा टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के बराबर, या नेगेटिव चार्ज के बराबर अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है आयनिक कंपाउंड का। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो ये है, अब यहाँ से हमारे पास एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, एन फैक्टर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है ना किसी भी कंपाउंड का, तो इट्स नथिंग बट द मोलर मास डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपको एक्चुअली में इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास की वैल्यू होगी वैलेंसी के बराबर। अगर मुझे एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट मास निकालना, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू चार्ज के बराबर होगी। ठीक है, अगर मुझे आयन का इक्विवेलेंट मास निकालना है और एन फैक्टर की वैल्यू मेरे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज है और टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगी। अगर मुझे आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एन फैक्टर, यहाँ से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी एन फैक्टर के बारे में हम कैलकुलेशन एन फैक्टर की वो डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट इक्विवेलेंट मास इज। देयर आर मेनी मोर लेयर्स टू इट स्टिल। ठीक है, तब समझते हैं। देखो, अभी तक हमने जनरली इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट किए, अब मैं वो कैलकुलेट करूंगी इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, विच इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू पे एब्सोल्यूट अटेंशन। सबसे पहले हम बच्चे क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स। क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स। एसिड्स का इक्विवेलेंट मास बच्चे अगर हमें कैलकुलेट करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस केस में ये है केस वन। केस वन में अगर मुझे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो पहला है इफ़ द केमिकल रिएक्शन इज नॉट गिवन वर्सेस इफ इट्स गिवन। ठीक है, केस वन है, मान लो अगर केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, इफ द केमिकल, जस्ट रैंडमली मैंने बोला कि HCl का मान लो मुझे इक्विवेलेंट मास निकाल दो, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे। पहला तो जब केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखा हो वर्सेस जब केमिकल रिएक्शन दे रखा होगा। ठीक है, तो पहला होगा इफ़ द केमिकल रिएक्शन इज नॉट गिवन, इफ़ द केमिकल रिएक्शन इज नॉट गिवन, उस केस में इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? उस केस में बच्चे इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। उस केस में इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? उस केस में इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर।
मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी बच्चे। अब यहाँ पे एसिड्स, अभी हमने देखा एलिमेंट्स के केस में ये n फैक्टर था वैलेंसी, आयंस के केस में n फैक्टर था चार्ज के बराबर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बराबर, और आयनिक कंपाउंड्स में ये n फैक्टर था टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर। अब एसिड्स के केस में ये n फैक्टर क्या होता है? एसिड्स के केस में बच्चे ये n फैक्टर जो होगा दिस विल बी इक्वल टू द बेसिसिटी। अब आ गया एक नया टर्म मैम, बेसिसिटी। देखो सबने सुन तो रखा है बेसिसिटी के बारे में, इनफैक्ट पढ़ा भी है, बट आई नो याद नहीं होगा, इज अ डिफरेंट थिंग। यू नो बहुत टाइम्स ऑफ कोर्स रिविजन आपको 11th का ही नहीं आपको याद रहता है, तो फॉरगेट अबाउट 10th में जो पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये देखो क्या होता है एग्जैक्टली बेसिसिटी एंड ऑल, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब बेसिसिटी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि बेसिसिटी बच्चा होता क्या है। बेसिसिटी होता है, अगर मैं एक एसिड की बेसिसिटी को डिफाइन करूँ तो बेसिसिटी इन द सिंपलिस्टिक टर्म्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। उस एलिमेंट में से, उस एसिड में से मैं कितने H+ आयंस को रिप्लेस कर सकती हूँ, यानी रिमूव कर सकती हूँ, यानी इजीली आई कैन गिव अवे द H+ आयन, मैं कितने H+ आयंस को इजीली रिलीज कर सकती हूँ, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, राइट। तो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन समवेयर यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। बेसिसिटी बेसिकली क्या होता है बच्चे? बेसिसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स नहीं, हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब देखो जनरली मैं कुछ कंपाउंड्स, कुछ एलिमेंट्स के बेसिकली एसिड्स के बेस वो लिखूंगी बेसिसिटी, एंड यू नो ये याद ही होती है मोर और लेस तो, बट लेट्स सी, ठीक है। जैसे ये मान लो एसिड, और उसके सामने मैं यहाँ लिख देती हूँ उसकी बेसिसिटी, लेट्स से यहाँ पे हम उसकी बेसिसिटी को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एसिड की, तो लेट्स से मैं एसिड लेते हैं, सबसे पहले HCl ही ले लेते हैं। HCl में देखो कितने H+ आयन थे? 1, ठीक है। तो बेसिसिटी इसकी क्या हो जाएगी? एक H+ आयन लूज कर सकता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ H2SO4 की, H2SO4 यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन थे, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो यहाँ बेसिसिटी हो जाएगी 2, ठीक है। फिर मैं बात करूँ लेट्स से HNO3 की, HNO3 में बच्चा एक हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस 1, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ H3PO4 की, H3PO4 की फॉस्फेट आयन की, ठीक है, मतलब फॉस्फेट आयन की, फॉस्फोरिक एसिड की, ठीक है। H3PO4 की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन हैं? 3, तो यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हैं? 3, ठीक है। मैं बात करूँ H2CO3 की, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड में कितने रिप्लेसेबल H+ आयन है? 2 रिप्लेसेबल H+ आयन है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे जैसे H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरस एसिड। फिर मैं आपसे पूछूंगी H3PO2, ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछूंगी CH3COOH विच इज़ व्हाट, टेल मी, एस्टिक एसिड, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास लेट्स से मैं बोरिक एसिड, CH3BO3। आप मुझे इनमें बताइए, इनमें इनकी एसिड वो क्या होगी? तो इसमें बच्चे बोलेंगे 3, ठीक है, इसमें बच्चे बोलेंगे 3, इसमें 3 और 1 4, और इसमें बच्चे बोलेंगे 3, और ये सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। बिकॉज अभी तक वी वर अंडर द इम्प्रेशन हम सिर्फ फॉर्मूला देख के बेसिसिटी डिड्यूस कर रहे थे, बट ये मैंने कब बोला था कि उस फॉर्मूले में जितने हाइड्रोजन आयन होंगे, मैंने आपको बेसिसिटी डिफाइन किया नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन आयन हो सारे के सारे रिप्लेस हों। यहाँ पे आ जाता है रोल ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर ऑल्सो मैटर्स हियर। नॉट ऑल द हाइड्रोजन आयन्स दैट यू सी इन एन एसिड आर रिप्लेसेबल, ओनली दोज विच आर बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर आयनाइजेबल। अब इसका मैम क्या मतलब है? सडनली इट ऑल साउंडेड लाइक ग्रीक टू अस, ठीक है। उससे पहले यू नो बिफोर आई एक्चुअली डाइव डीपर इनटू दिस, जस्ट रिमेंबर कि H3PO3 में एक्चुअली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन सिर्फ 2 होते हैं, H3PO2 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन सिर्फ 1 है, CH3COH विच इज एसिटिक एसिड, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आयंस, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस 1 है, H3PO3 में भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 है। तो ये 4 स्पेशल केसेस हैं, लर्न इट, ठीक है, लर्न इट और रिमेंबर इट एट लीस्ट, ठीक है। देखो अब 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, इसको लेट्स जस्ट मूव इट टुगेदर, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो इसको मैं सेव करती हूँ, अब लेट्स यू नो टेक अनदर पेज, और वहाँ में मैं आपको एग्जैक्टली समझाती हूँ कि बेसिसिटी में जब मैंने बोला कि इट्स नॉट जस्ट यू नो व्हाट यू सी इन द फॉर्मूला, द स्ट्रक्चर ऑल्सो मैटर्स, राइट। नॉट ऑल द हाइड्रोजन आयंस इन एन एटम और इन एन एसिड आर एक्चुअली रिप्लेसेबल, ओनली दोज विच आर बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर ionizable. I hope that made sense. Let's open a blank page and let's understand this. ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज नाउ, ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब इसको एक्चुअली में समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं
फोर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, H3PO4 वर्सेस क्या क्या है। मैं सबके स्ट्रक्चर्स तो नहीं बताऊंगी बिकॉज दिस इज समथिंग यू लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग पे जो वीडियो आएगा यू हैव टू रेफर टू दैट वीडियो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी स्ट्रक्चर, राइट। वहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मान लो H3PO4 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वर्सेज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ H3PO3, ठीक है, यहाँ मैं ले लेती हूँ H3PO3, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ H3PO3। अब H3PO2 एक एक करके सब समझेंगे। सबसे पहले मैं H3PO4 की अगर बात करूँ तो H3PO4 में देखो P डबल बॉन्ड O, 4 ऑक्सीजन आटम्स है, एक ये हो गया। फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स बना सकता है। ग्रुप 15 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्य, सबके बिंदास मकान, ठीक है। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मस्कोवियम, राइट, दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स बना सकते हो, 2 बॉन्ड्स बना लिए, ठीक है, 3 बॉन्ड्स और रह गए हैं, ठीक है। तो पहले ये ऑक्सीजन 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 हमें पता है डाइवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है, एक फॉस्फोरस के साथ बन गया, दूसरा हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, बेसिसिटी के लिए स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। जितने भी हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं जरूरी नहीं है सारे के सारे रिप्लेसेबल हों। ओनली दोज हाइड्रोजन एटम्स विच आर बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन कौन से हो जाएंगे, फोन से याद रखते हैं, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कह रही हूँ, ठीक है। What are those highly electronegative atom? It is fluorine, oxygen and nitrogen. Fluorine, oxygen, nitrogen से जो बॉन्डेड हो, ठीक है। तो हमें क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन से बाउंडेड है। और हम क्या बोलते हैं, जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर हम बेसिकली बेसिसिटी निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, मान लो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। और ये H+ फॉर्म आयंस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। नहीं, वन सेकेंड, एक और बार इसको तमीज से करते हैं, एक और, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने बोला, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी, मतलब बेसिसिटी में स्ट्रक्चर तो मैटर करता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस है वो होता है बेसिसिटी। पर जैसे कि मैंने बोला, नॉट ऑल द हाइड्रोजन आयंस आर रिप्लेसेबल इन एन एसिड, ठीक है, ओनली दोज विच आर बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द आयनाइजेबल। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से बाउंडेड है, ठीक है। तो ये जो बिकॉज ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो ऑक्सीजन है इट विल अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट्स, मतलब ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा एंड हेंस इट विल एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन द सेम वे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी ऐसा ही होगा। ऑक्सीजन जो है इट विल अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, उस पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, एंड सेम गोज विद दिस, सेम इस केस में भी होगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन बोलेगा यार मुझे पे वैसे ही पॉजिटिव चार्ज की कमी है, हम वन शॉर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी तुम मेरे से खींच लो, ठीक है। वन सेकेंड अब हाइड्रोजन बोलेगा कि मेरे पास यार वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, आई एम जस्ट वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तुम जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी मुझसे खींच रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, काम करो, मैं जा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होगा बच्चे, उस केस में ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड प्रीटी मच ब्रेक्स, ये बॉन्ड टूटता है और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, हाइड्रोजन H+ आयंस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो इस कंपाउंड में कितने रिप्लेसेबल H+ आयंस है, कितने H+ आयंस है जो वो लूज कर सकता है, 3, राइट। सो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, H3PO4 की बेसिसिटी क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, एसिड्स के केस में जो बेसिसिटी होती है वही उनका एन फैक्टर होता है, तो इस केस में H3PO4 में उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा 3। बट यहीं पे अगर मैं इसे कंपेयर करती है H3PO4 से, तो लेट्स डू इट। अब H3PO4 हो गया, H3PO3 से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो H3PO3 में कुछ ऐसा है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, फॉस्फोरस टोटल 5 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक से बॉन्ड बन गया है, ठीक है, एक और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन तो खत्म हो गए, ठीक है, 3 ही ऑक्सीजन। अब आई हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मतलब ये जो बॉन्ड बनेगा ये डायरेक्टली हाइड्रोजन से बन रहा होगा, और ऑक्सीजन से हमें पता है डाइवेलेंट है, एक बॉन्ड तो बन के एक हाइड्रोजन से बनाएगा। तो आप देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से दिखता है। H3PO3 में है 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं विच आर बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज ऑक्सीजन, एज यू कैन क्लियरली सी। उसके अलावा ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो फॉस्फोरस से बॉन्डेड है, और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, राइट। तो बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही ज़्यादा नहीं होगा, तो वो चार्ज सेपरेशन ही डेवलप नहीं होगा, तो H+ के फॉर्म में वो लूज कैसे होगा, राइट। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पेयर मोर और लेस सेंटर में ही रहेगा, तो ये लूज कैसे होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इन द सेम वे यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इट विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव। अब बिकॉज हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो रही है और हाइड्रोजन बोल रहा है यार तुमने मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मुझसे छीन ली, तो ये
ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को मिल जाएंगे और ये H+ आयंस के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन आयंस है ये एसिडिक हैं, जो H+ के फॉर्म में लूज हो सकती हैं। दीज आर रेफर्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो इस केस में H3PO3 के केस में भले यहाँ पे आपको दिख 3 हाइड्रोजन आयंस रही हैं, बट मैंने क्या बोला था, ओनली दोज हाइड्रोजन आयंस आर आयनाइजेबल विच आर बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसी हाइड्रोजन थी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से बॉन्डेड थी, इसलिए वही सिर्फ 2 लूज हो सकते हैं, वही 2 रिप्लेस हो सकते हैं। इसलिए इस केस में जो बेसिसिटी है विच इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, दैट बेसिसिटी इज इक्वल टू 2, और एसिड्स के केस में बेसिसिटी उनका एन फैक्टर होता है, तो H3PO3 का एन फैक्टर 2 हो जाएगा, H3PO4 का एन फैक्टर 3 है, H3PO3 का एन फैक्टर 2 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ H3PO2 के, सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे हो, जिसको बेसिक जिसमें डाउट था, ठीक है, ओनली दोज विच हैड दैट पॉइंट वेयर यू हैड दैट पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, आई एम जस्ट क्लियरिंग दैट आउट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल H3PO2 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, H3PO2 के केस में अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो लेट्स डू इट टुगेदर। H3PO2 के केस में बच्चे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, H3PO2 के केस में हो जाएगा फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस 5 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन से तो बॉन्ड बन गया, एक और ऑक्सीजन ही आ गया। ठीक है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन पहली बार तो डाइवेलेंट होता है, तो अब इसकी, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन और बचे हैं, ये 2 डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच होंगे। तो H3PO2 के केस में भले आपको देखने में कितने हाइड्रोजन आयंस नजर आ रहे हैं, यू कैन सी 3 हाइड्रोजन आयंस, पर अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस है, तो आप क्या बोलेंगे, कितने रिप्लेसेबल है, सिर्फ एक, बिकॉज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस वो होते हैं विच आर बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल बी पुल टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी केस में ये चार्ज सेपरेशन डेवलप हो रहा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये H+ आयंस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो H3PO2 में सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, सिर्फ यही एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में बच्चे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इस केस में बेसिसिटी हो जाएगी 1। ठीक है, बेसिसिटी ही एसिड्स के केस में उनका एन फैक्टर होता है, तो एन फैक्टर की वैल्यू भी यहाँ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, एक और आया था लास्ट जो एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन था बच्चों के बीच में, वो था CH3COOH विच इज एसिटिक एसिड, CH3COOH। अब बच्चे बोलेंगे इसमें 3 और 1 4 हाइड्रोजन एटम्स है, इसका इन फैक्टर 1 कैसे आ रहा है, बेसिसिटी 1 कैसे आ रही है, तो इट ऑल लाइज इन द स्ट्रक्चर। इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर केयरफुली यू सी, यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो अगर आप बच्चे ध्यान से यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयंस हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है। इन तीनों हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, इफ यू क्लियरली सी, तीनों हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये कार्बन से अटैच्ड हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर और लेस सेम सी ही होती है, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो ये तीनों तो H+ आयंस की फॉर्म में लूज नहीं होंगे, राइट। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा सिर्फ ये वाला, क्या ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, यस, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो उस केस में ये वाला हाइड्रोजन आयन जो है वो इजीली लूज हो जाएगा H+ की फॉर्म में। तो इस केस में सिर्फ हमारे पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रहा, यही एसिडिक हाइड्रोजन जो H+ की फॉर्म में लूज हो जाए। तो इस केस में जो एसिड है हमारे पास, एसिटिक एसिड, उसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी, और एसिड की जो बेसिसिटी होती है वही उनका एन फैक्टर होता है, तो CH3COOH का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। एक लास्ट जो हमारे पास था इसी में जिसमें कन्फ्यूजन था आपको, एक थी, मोस्टली हमने सारे डिस्कस कर लिए, एक हमारे पास बस ये बोरिक एसिड और बचा, राइट। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी मान लो अगर मुझे डिड्यूस कराना हो तो देखो बोरिक एसिड में क्या होता है। ठीक है, बोरिक एसिड की अगर बच्चे में बात करूँ तो बोरिक एसिड में क्या है हमारे पास, बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3। इसमें देखो क्या होता है, बोरिक एसिड में बेसिकली बोरॉन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 3। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा मान लो, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम सबको पता है कि जो बोरॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बोरॉन। ठीक है, मतलब बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, राइट। तो H3BO3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया, क्योंकि बोरॉन में देखो यहाँ पे, ठीक है, डिस्पाइट फॉर्मिंग ऑल द बॉन्ड्स, मैक्सिमम जितने बॉन्ड्स बना सकते हैं सारे बनाने के बावजूद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देखो यहाँ पे 1 2 2 3 4 5 6 की वैलेंस शेल में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाता है। तो क्या करता है ये H3BO3 क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन करता है, कंबाइंस विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ कंबाइन करके बच्चे क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन करके, वाटर के पास हमें पता है ऑक्सीजन भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 लोन, बेसिकली एक लोन पेयर है, इसमें से ये जाएगा और ये अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बोरॉन के साथ शेयर करा देगा, डोनेट नहीं कराएगा, शेयर करा देगा एक साइड से। ठीक है, शेयर करा देगा, तो उसके बाद क्या होगा, अब जब ये शेयर करा देगा उसके बाद होगा बोरॉन, यहाँ पे BOH। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे OH।
ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल्स पे नहीं होते ऑफ कोर्स, मैं तो बस बना रही हूँ फॉर द रेफरेंस पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बोरॉन पे ये 3 OH तो थे, यहाँ से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने अपना एक जो बेसिकली लोन पेयर है वो इसके साथ शेयर कर लिया, एक लोन पेयर अभी भी बचा है, और हमारे पास उसके अलावा क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन, राइट, 2 हाइड्रोजन। बट हमारे पास ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसमें एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इट विल एक्वायर अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वाई विल इट एक्वायर अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बोरॉन के साथ शेयर कर लिया है, लोन पेयर बेसिकली, ठीक है। तो इस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन हम सबको पता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इट कैन नॉट बेयर दैट पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी कॉन्स्टेंटली कोशिश रहेगी कि इस हाइड्रोजन से ये लगातार बस ये अपना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किए जा रहा है, पुल किए जा रहा है, पुल किए जा रहा है कि यार मुझे कोई मेरा लोन पेयर वापस दे दो, यू नो आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल, मुझे ज़्यादा दानवीर नहीं बनना, ठीक है। तो जब ये बार बार हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे अपना जो दूसरा लोन पेयर है वो वापस आ गया, और ये हाइड्रोजन जो है ये H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये क्या होगा, ये H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास कंपाउंड क्या बना, हमारे पास बना B, ठीक है। यहाँ कितने OH 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 और अब ये भी OH, ठीक है, बिकॉज वो तो H+ की फॉर्म में रिलीज हो गया, तो ये एग्जिस्ट करता है BOH होल 4 माइनस, एक माइनस चार्ज हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस चार्ज, और ये H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब ये जो H+ है वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गेट। तो अब इसमें से मुझे बताओ पूरे कंपाउंड में से कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हुए, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हुआ। तो इस केस में बच्चे जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड का N फैक्टर कितना होता है, N फैक्टर यानी बेसिसिटी 1 होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, इतना सबको समझ में आया। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।